point or important topic for you is inherent limitations of auditing. Okay, as of now आपने limitations word तो सुना है ना? Limitations of that, these accounting, इसका limitation, banking का limitation. So you have heard the word limitations. Limitations of auditing तो ठीक है, but मैंने एक और word use किया है इधर. What is that? Inherent. Please understand what is inherent first. Okay, inherent matlab, all of in class listening, right? Okay, following. Inherent matlab, it is already there in auditing and it is there in almost all auditing. You cannot avoid it. That is inherent. मतलब it is not a company specific या auditor specific. हाँ, ये auditing में ही ऐसा होता है, ये company auditing में ही ये सारे limitation आया, ये auditor के वजह से ये problem limitations आया. It's not like that. If you go for any auditing, okay, any company auditing, any auditor, he may faces these limitations. There may be these limitations in any auditing. That's why we are using the word inherent. Hope that is clear. Okay, so inherent limitations of auditing मतलब ये auditing में रहते हैं. For example, you might be knowing, अरे इसका पैदाइशी ऐसा है, याद है ना? By birth बोलते हैं, ऐसे ही है, पैदा होने से ही ऐसा है. What is that? मतलब उसका hidden है वो, उसके अंदर वो quality है, आप कितना भी चाहो निकाल नहीं सकते. Same way this is. Like auditing पैदाइशी ये सारे limitations हैं, आप निकाल नहीं सकते. That is inherent limitations of auditing. Hope inherent word is clear, everyone. Clear हुआ ना सबको? Inherent limitations. Yes, Okay, very yes, good. ma'am. Yes. So now let us move on. Inherent limitations कौन कौन सा है ना? पैदाइशी auditing में क्या क्या limitations है, क्या क्या black marks है? Let us understand. So auditors' works involves exercise or judgment. The most important limitation we can say problem in auditing is auditing जो भी करता है, okay, उसको एक fixed norm बोल के नहीं रहता है. तुम ये करेगा, तू इतना चेक करेगा, तू इतना ही चेकिंग करेगा, इससे ज्यादा चेक नहीं करेगा, पूरा चेक करेगा, ऐसा नहीं रहता है. Completely कहा क्या चेक करेगा, that is based on auditor's judgment. Okay, there is no fixed norms. और ये कंपनी को ऑडिट करते इतना सारे सब कुछ चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है. Okay, समझो एक बड़ा कंपनी है, there are 1000 or 2000 transactions happening in a day. Getting students, in a day. And if you tell auditor to check each and everything from point A to point Z, is it possible for him to check? क्योंकि बच्चों auditing हमेशा max to max 2 to 3 months में खत्म होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. So ये 3 month के टाइम पे आप ऑडिटर को बोलो कि A to Z चेक करो, it's not possible. And he will check, but randomly pick करके चेक करता है. Okay. So एक पॉइंट के साथ मैं और एक पॉइंट कनेक्ट कर रही हूँ आपको. So based on his judgment, he will do test checking. Connected. What is test checking then? Checking only certain samples. Okay. Checking samples. ये आपको टेस्ट चेकिंग के बारे में डिटेल में बाद में है 3rd यूनिट में. But you should know what is test checking to understand. What is test checking, students? समझो, all of you listen carefully. समझो there are maybe sales related 10,000 vouchers पड़ा है और 10,000 transactions हुआ है कंपनी का, sales related सिर्फ. Okay, सिर्फ sales का बात कर रही हूँ, purchase there is अलग है, salary अलग है, rent का अलग है. सिर्फ sales related 10,000 transactions are there in a year. Now tell me students, can auditor check each of those 10,000 transactions? करेक्ट है कि नहीं देखना है ना, उसको एरर है कि फ्रॉड है. Whether it is possible for him to check all those 10,000 transactions? No, right? Because वो करते बैठेगा 3 महीने में सिर्फ एक सेल्स चेक करेगा, बाकी कुछ चेक नहीं कर पाएगा, बाकी कोई डिपार्टमेंट चेक नहीं कर पाएगा. So in that case, what he is doing is just picking up certain samples. Okay,
just picking up certain samples. I'll give you one simple example. मैं हमेशा example देती हूँ, I think वो थोड़ा समझने में easy हो जाता है. समझो अभी एक बड़ा सा 100 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, आपका छोटा क्लास है, तो मैं आपका एग्जांपल नहीं दिया. बीकॉम समझो, बीकॉम का क्लास है, 100 to 150 एक क्लास में रहता है बीकॉम में. ओके, 150 का एक डिवीजन है. सो 150 का क्लास में प्रिंसिपल सर को फीडबैक लेना है बच्चों का. ओके, गेटिंग एवरीवन, फीडबैक लेना है. वो भी कैसा, फॉर्म सब भरवा के नहीं, 1-to-1 फीडबैक लेना है सर को, ऐसे फेस टू फेस फीडबैक लेना है. अभी समझो सर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, यू नो प्रिंसिपल सर हाउ मच वर्क ही विल बी हैविंग, सो ही इज अ डिसीजन मेकर, राइट. सो उनका काम अलग है. सो अभी 150 स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के लिए सर क्या करेंगे, आउट ऑफ दैट 150, होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग, out of that 150 he will pick certain 15 to 20 students randomly. All of you getting? Randomly 15 to 20 students मे भी क्लास में आएंगे एक दिन. ओके, ऐसा देखेंगे, ठीक है सब बैठे हैं, बेटा तू आजा, यू कम एंड यू आल्सो कम बोल के एक 15 to 20 स्टूडेंट्स को लेके गए. Now sir will ask with them how the classes are going on, whether all subjects you are understanding, whether college atmosphere is good. ये सारे जो feedback लेना है सारे उनसे पूछ लिया. Okay, this is what called test checking. अभी प्रिंसिपल सर ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग 150 स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, वो 15 स्टूडेंट्स कौन बने अभी, रिप्रेजेंट किया है ना. रिप्रेजेंट मतलब यू नो राइट, दे रिप्रेजेंटेड whom, they represented entire class. करेक्ट है बच्चों, मतलब वो जो 15 स्टूडेंट्स ने फीडबैक किया, that will be considered as the feedback of all 150 students. Agree with me? Yes or no? Yes. So Yes, that ma'am. is based on that 15 students feedback, sir will come to a conclusion now. एक ओपिनियन में आ जाता है. समझो 15 लोग बोले क्लास एकदम मस्त चल रहा है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ओके वी आर एंजॉयिंग ऑल क्लासेस. इफ दे से लाइक दैट, व्हाट सर विल बिलीव, okay this class is happening properly, all 150 students are happy with the class. correct है बच्चों? yes or no? अभी इसमें Yes, एक ma'am. प्रॉब्लम आ सकता है. Yes, क्या ma'am. प्रॉब्लम है? ओके, लिसन केयरफुली, इंटरेस्टिंग है. क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये जो 15 बच्चे उठा के गए ना सर, ये 15 डिफॉल्टर्स है, आज ही आके क्लास में बैठे हैं, कभी कॉलेज में आए ही नहीं, 0%, 10% अटेंडेंस वाले हैं. अभी बोलो ये 15 के ऊपर सर एक्टिंग कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते. No, नहीं no, कर ma'am. सकते, है ना. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. क्या प्रॉब्लम हो सकता है इधर, जो सर ने वो 15 बच्चों का सुन के कंक्लूजन निकाला ना, वो गलत कंक्लूजन भी हो सकता है. इसके लिए मैंने ये दोनों पॉइंट लिमिटेशंस में ऐड किया. अभी समझा सबको व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ लिमिटेशन. पर्सनल जजमेंट पे सर ने उठाया 15 बच्चों को और टेस्ट चेकिंग किया. टेस्ट चेकिंग मतलब सैंपल्स निकाल के उनसे ही बात किया. सो ये दोनों क्या हो गया, एक लिमिटेशन है. बट ये अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक एक स्टूडेंट से बात करूंगा बोल के प्रिंसिपल सर बोल सकते हैं? नो, ही हैव टू रिलाई ऑन दोस 15 स्टूडेंट्स. सेम थिंग डियर स्टूडेंट्स, अभी ऑडिटिंग में कनेक्ट करो. ओके, ऑडिटिंग में भी होता है. ऑडिटर क्या करता है, मैंने बताया 10,000 सेल्स वॉचर से सेल्स हुआ है, 10,000 ट्रांजैक्शंस हुआ है सेल्स का. तो क्या करेगा, इसमें he may take 10%, means 1,000 transactions ही चेक करेगा randomly. So समझो, all of you understand, these 1,000 transactions were perfect without any errors. What will be his conclusion? Tell me fast. ये 1000 ट्रांजैक्शंस करेक्ट है, इसमें एरर्स नहीं है, तो क्या ओपिनियन है ऑडिटर का यहाँ पे अबाउट दीज 10,000 ट्रांजैक्शंस? यस, एनीवन? I think you didn't get the point properly. Okay, ऑडिटर ने क्या किया, 10,000 ट्रांजैक्शंस चेक करना था. 10,000 ट्रांजैक्शंस में उसने सैंपल्स उठाया सिर्फ 1,000 ट्रांजैक्शन का. सो 1,000 ट्रांजैक्शंस चेक करके उसको लगा ये 1,000 ट्रांजैक्शन करेक्ट है.
तो अभी क्या ओपिनियन में आएगा अबाउट रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस? क्या बोलता है मैम, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन के सब बारे में? करेक्ट है, उसको लगेगा सब यस, सही है। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर करेक्ट, बाकी 9,000 भी करेक्ट है। समझो, ये 1000 जो सैंपल उठाया सिर्फ ये अच्छे थे, बाकी 9,000 पूरा खराब था। तो ऑडिटर का कंक्लूजन क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है। ऐसे अपना प्रिंसिपल सर के एग्जाम्पल में हो गया, 15 जो सैंपल उठाए वो गलत सैंपल था, उसके वजह से सर ने गलत कंक्लूजन पे आए। सेम थिंग में हैपन हियर आल्सो, बट दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसे बोल के ऑडिटर ये नहीं कर सकता कि ये मैं पूरा 10,000 चेक करूंगा। No, there may be chance of these kinds of problems which may arise in auditing. That's why this is one of the limitations of auditing. What is that? Auditor, whatever samples he is taking out, it is completely depending upon his judgment. है ना, इधर सिर्फ सैंपल्स उठाए रैंडमली, उसको कुछ प्रॉपर उसके हिसाब से निकाला, उधर कुछ प्रॉपर ये नहीं था कि आपको इधर यही सैंपल उठाना है, यही कुछ रूल्स नहीं था। ओके, और उसने टेस्ट चेकिंग किया वो सैंपल्स उठा के अपना जजमेंट के बेसिस में। दैट्स व्हाई दीज टू पॉइंट्स आर कंसीडर्ड एज लिमिटेशंस। होप यू अंडरस्टूड। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, ए लिमिटेशन है बट ये अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं टेस्ट चेक नहीं करूंगा, ऐसे अवॉइड कर सकता है? दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज इनहेरेंट लिमिटेशन। नाउ यू अंडरस्टूड बच्चों? नाउ इट इज क्लियर। इट इज देयर इन ऑडिटिंग एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। बिकॉज ऑफ दैट ऑडिटर मे कम टू ए रॉन्ग कंक्लूजन, बट दैट केस यू कैन नॉट ब्लेम द ऑडिटर। अभी अभी हम पढ़ के है ना, फ्रॉड है, ऑडिटर फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो भी हम ऑडिटर को ब्लेम नहीं करते। क्यों? Because of these two limitations. Hope it is clear. पक्का क्लियर हो गया ना? कनेक्शन समझा ना? सी हमने इधर पढ़ा था ना, इधर पढ़े थे हम प्रीवियस स्लाइड में, मैं दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ा था, राइट? ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। सी दिस पॉइंट, कर्सर में जिधर रख रही हूँ देखो, ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिस्कवरी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ये पॉइंट इधर क्यों आया? क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज टू लिमिटेशंस, है ना, कंप्लीटली उसका जजमेंट बेस्ड रहता है एंड ही गोस फॉर टेस्ट चेकिंग। बिकॉज ऑफ दैट there may be such problem that auditor may not be able to identify everything, all frauds. Okay, so ये दो point clear हो गया। Hope that is clear. Now what is the second thing I had written? Audit evidence is not conclusive. What do you mean by conclusive? Conclusive evidence मतलब जो भी एविडेंस उठाता है ऑडिटर, ये नहीं बोल सकते ये करेक्ट है, इससे मैं फाइनल डिसीजन पे आ सकता हूँ। वो एविडेंस में भी गड़बड़ हो सकता है, वो एविडेंस खुद क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है मैनेजमेंट का, है ना। सो दैट इज वन मोर लिमिटेशन। बच्चों, ऑडिटर अपना जो भी ओपिनियन लेके आता है, कहाँ से ओपिनियन ड्रॉ करता है? उसको सपने में भी नहीं आता है ना कि ये इसमें इधर एरर है, इधर फ्रॉड है, सपने में नहीं आता है। सो फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग टू अ कंक्लूजन और ओपिनियन? फ्रॉम द एविडेंसेस। बट जो एविडेंस वो लेके आता है नीड नॉट बी ए कंक्लूसिव एविडेंस, उसमें भी मिस्टेक्स होने का चांसेस है। बट ऑडिटर के पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, he have to depend on those evidences given by the management. That's why this is one of the limitation. Hope that is clear. Clear हो गया? 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों? Okay. Now audit cannot be relied up on to discover all process. Okay, audit cannot be up relied नहीं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, relied up on to discover all process. What is this point? As I told, you cannot tell auditors सारे चेकिंग करना है। ओके, ये बैठ के सारे चेक करेगा, उसके बाद ही अपना ओपिनियन देगा। नो, वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। एज आई टोल्ड, व्हाट ही इज डूइंग टेस्ट चेकिंग, तो वी कैन नॉट टेल हिम पूरा बैठ के चेक कर बोल के, वी कैन नॉट टेल। ओके, ऑडिटर कैन नॉट डिसाइड ऑब्जेक्टिवली व्हाट इज मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो इसको। मटेरियल मतलब क्या है? रॉ मटेरियल नहीं है। ओके, तुम लोग को अभी तक क्या है मटेरियल मतलब वही पता है, रॉ मटेरियल।
मटेरियल मतलब ऑडिटिंग में, अभी समझो क्लियरली, ऑडिटिंग में उसका मीनिंग अलग है। ओके, ऑडिटिंग में मटेरियल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? व्हेनेवर समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर, it may be a transaction, it may be an evidence which is very important. So material word is a term which is used for important, okay, in auditing. Now auditor have to check है ना, books of accounts, evidences, but can auditor decide अरे ये तो कंपनी में important ही important है, इसको चेक करना ही है, ये उतना important नहीं है, इतना material नहीं है, it need not be checked? No, right? That is one of the limitation. Auditor cannot decide ऑब्जेक्टिवली, पक्का ये नहीं बोल सकता हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपनी, इसको तो कंप्लीट चेक करना ही है, इसमें एरर हो सकता है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, ही कैन नॉट डिसाइड दैट कंप्लीटली, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हिज जजमेंट। हमने फर्स्ट में सीखा है ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन जजमेंट। ओके, देखेगा, उसको लगेगा हाँ ये कंपनी में ये जो पार्ट है जो सेल्स हो रहा है कंपनी में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये महीने का सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा चेक करना है। सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टूडेंट्स, इज जजमेंट। कहीं पे भी लिखा नहीं रहता है ओके ये कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। समझो ऑडिटर ने सोचा था दिस पार्ट ऑफ द कंपनी इज इम्पोर्टेंट, और पता चला दूसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है उसने चेक ही नहीं किया। Why that has happened? Because it is completely depend on auditor's judgment. He cannot decide exactly what is material in the company. Hope material मतलब clear हो गया? What is important in the company? Okay? हाँ, अभी come to the next point. Next point. Auditor is not a technical expert. Agree with me, everyone? What is a technical expert मतलब? Can anyone tell me? Okay, I'll give you one example. समझो ऑडिटर एक प्लांट में गया, प्लांट मतलब यू नो ना, पौधा नहीं अपना, हाँ फैक्ट्री को प्लांट बोलते हैं। तो फैक्ट्री में गया, उधर देखा 10 मशीनरी है, और उसको लग रहा है एक तो मशीनरी शायद बरोबर नहीं काम कर रहा है, और कंपनी इसको लिखा नहीं है कहीं पे भी। तो बैठ के वो 2 मशीनरी को स्क्रू सब लेके खोल के बैठ के चेक करेगा क्या ऑडिटर? नहीं। Nahi, right? He will not do that. Why? Because he is not a technical expert. Correct? Then Yes. he have to depend on some expert opinion there. तो तब क्या करेगा? उधर ही छोड़ेगा नहीं, तो क्या करेगा? एक टेक्नीशियन को बुलाएगा, एक मैकेनिक को बुलाएगा, ओके? उसका सर्टिफिकेट लेगा, उससे एक लिखवा के लेगा, भाई देख ये मशीनरी में कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो जरा चेक कर ये रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। क्योंकि बच्चों ये हो सकता है, लिसन केयरफुली, कंपनी में 10 मशीन है, सिर्फ 5 मशीन करेक्ट है, नया है एंड वर्किंग कंडीशन में है, बाकी 5 मशीन खराब हो गया है, बहुत पुराना है। बट ये हो सकता है ओके, ये हो सकता है कंपनी ने जब बैलेंस शीट में दिखाया ऑल 10 मशीन्स दे हैव शोन इन द बैलेंस शीट। एक्चुअली क्या करना था कंपनी को? सिर्फ 5 मशीन को बैलेंस शीट में दिखाना था, क्योंकि बाकी 5 खराब हो गया है, ऑब्सोल्यूट स्क्रैप हो गया, उसको स्क्रैप में डालना था। लेकिन वो लोग क्या किया है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट को ओवर वैल्यू करने के लिए दिखाया है। तो इसको आइडेंटिफाई करना किसका काम है? Who is supposed to identify that whether all 10 machines are working condition or not, which is shown in the balance sheet? Auditor have to identify, but Yes. auditor बैठ के, मैंने as I told, खुद मशीन को खोल के बरोबर वर्क कर रहा है कि नहीं देख नहीं सकता, तो तब क्या करेगा ऑडिटर? He will depend on an expert. Okay. ऑफ कोर्स एक्सपर्ट को बुला के रिपोर्ट ले लेगा। अभी मैंने इधर लिमिटेशन में क्यों डाला इसको? समझो, लिसन केयरफुली, समझो जो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट ही रॉन्ग है,
लेकिन ऑडिटर के पास ऑप्शन नहीं है। क्या किया ऑडिटर ने, ये एक्सपर्ट का रिपोर्ट पे डिपेंड हो गया और उसने उसके बेसिस में अपना रिपोर्ट बनाया जब 5-10 मशीन भी वर्किंग है। बट द एक्सपर्ट ओपिनियन इटसेल्फ इज रॉन्ग, but there is no other option. Auditor have to depend on them. So that is one of the limitation. Sometimes auditor may have to depend on third parties, on technical experts. Okay, but why? He is not a technical expert. So that in that case, if any reports has gone wrong because of these parties, you cannot blame the auditor. Why? Because he is not a technical expert. कुछ समझा? Connectivity समझा? Yes, ma'am. Any doubt in this point? No. So, if auditor is going wrong somewhere because of some technicalities involved, and you cannot blame auditor in that case. Why? Because he is not a technical expert. He relied on certain experts. वो experts के ऊपर depend रहा, उसके वजह से उसने गलत conclusion दिया. But that case you cannot tell or blame auditor. So that is one limitation. Okay. Now going to next one. Absolute certainty not attainable. Exactly. है ना, ये definite हमें भगवत गीता का कसम है ना लेके बोलता हूँ, ये पक्का ये ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है, इसमें पूरा फ्रॉड है बोल के सर्टेनिटी में ऑडिटर बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें वो ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एविडेंसेस रॉन्ग है, उसका ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है। सो विद डेफिनेट और विद पक्का है ना, हाँ ये पक्का ऐसे ही हुआ है, वो ऑडिटर कैन नॉट टेल। सो दैट इज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कैन नॉट अटेनेबल। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, टेस्ट चेकिंग तो हमने डिस्कस किया। इंटरनल कंट्रोल, प्लीज एवरीवन लिसन प्रॉपरली, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, ये भी आपको बाद में आएगा क्वेश्चंस, मतलब इंटरनल कंट्रोल का वर्ड वापस रिपीट होगा। ओके, अभी तक हमने कौन कौन सा वर्ड सीखा जो अलग है ऑडिटिंग में इम्पोर्टेंट है, बोलो बच्चों, टेल मी फास्ट, आई विल राइट इट डाउन। मतलब जो नया वर्ड्स थे, ओके, मिस स्टेटमेंट्स, वेरी गुड, देन विंडो ड्रेसिंग, और ओके विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, थोड़ा पुराना है, ठीक है मैं लेती हूँ। हाँ, देन मैम आज हमने एक वर्ड पढ़ा, आज हमने एक वर्ड पढ़ा, इनहेरेंट, हाँ इनहेरेंट लिमिटेशन। ओके, देन और एक मैम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट है, व्हाट इज दैट सानिया? यस यस, नेहा बोलो, एनीवन एल्स? और एक इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ा हमने, इधर ही ऊपर ही है, मटेरियल, यस मटेरियल, वेरी गुड कोमल, कोमल बोली ना, कौन बोली उसको? कोमल मैम, हाँ कोमल, वेरी गुड, कोमल जागृति अभी देखो, हाँ मटेरियल, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट। और एक वर्ड कौन बोलेगा, इधर ही है वो भी, टेस्ट चेकिंग, हाँ वेरी गुड, टेस्ट चेकिंग, है ना, किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने इधर, याद है ना, वो एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है? हाँ प्रिंसिपल सर का, ओके, फीडबैक, हाँ। अभी मैं ये जो 5 वर्ड मैंने सिखाया उसके साथ और एक अभी ऐड कर रही हूँ, व्हाट इज दैट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, ये वर्ड अभी आज मैं पढ़ा रही हूँ, ये पूरा आपको दिमाग में रहना चाहिए फॉरएवर। ओके, आई एम नॉट टेलिंग सिर्फ ये सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर तक, फॉरएवर रहना चाहिए। व्हाट इज एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? लिसन केयरफुली, ओके, समझो, I'll give you one example and this is last term which I'll be teaching today, after that I'll wind up the class. Okay, समझो ये कॉलेज में आई एम वर्किंग देयर, आई एम एन एम्प्लॉय देयर, सो मुझे सैलरी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे सैलरी चाहिए। ओके, अभी एक्चुअली आज 21st ही है, मंथ एंड नहीं हुआ है, फिर भी मुझे सैलरी चाहिए। तो लिसन केयरफुली, कैन आई गो टू आर, अभी कोरोना वरोना को मत सोचो, ऐसे सोचो कि ओपन है सर, तो कैन आई गो टू आर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट याद है ना अपना अकाउंटेंट, हाँ, सो कैन आई गो टू आर अकाउंटेंट एंड आस्क हिम, भाई
मैं 20 दिन काम किया, चलो मेरा सैलरी निकालो. कैन आई गो एंड आस्क हिम लाइक दैट? No. No, ma'am. Why? Why No, cannot? ma'am. Why I cannot go and ask? मैं तो 20 दिन मैम उसको काम जॉब किया ना. करते हुए 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुए. क्या क्या वो क्या कैसे क्या भेजेगा? माधवी? उसको काम करते हुए 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हो, कैसे हाँ ठीक है, भेजेगा मैं अकाउंट पे? 30 दिन हो गया समझो, सैलरी नहीं आया, सीधा मैं अकाउंटेंट को बोलती हूँ अभी का अभी तू मेरा कैश जो है वॉलेट से उधर से निकाल के 30,000 दे या 40,000 दे, ऐसे बोल पर सकते. मैम अकाउंटेंट थोड़ी ना पैसे अब देगा. तो कौन Right. देगा उसको, शिफा? सैलरी तो वही देते हैं ना. मगर मैम उसको पूछना पड़ेगा पहले. उसको किससे पूछना पड़ेगा? मैनेजमेंट. हाँ, Higher मैनेजमेंट. authority. so it means there is a system involved there, students. Correct? Yes. So that is what I wanted to tell. There is a salary system. What is the system? पहले मेरा अटेंडेंस चेक करेंगे, है ना. और हम लोग वो बायोमेट्रिक्स में पंच करते हैं, आपको पता रहेगा, ये वाला पंच नहीं ऐसा. वो पंच करते हैं, देन हम मास्टर में साइन करते हैं, उससे मैं कितना दिन प्रेजेंट थी वो पता चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको HR एक बार चेक करेगी, अच्छा ये 30 दिन में से कितना प्रेजेंट थी, उसको अकाउंटेंट के पास भेजेगी, और अकाउंटेंट एक सैलरी स्लिप बनाता है. करेक्ट है बच्चों? सैलरी स्लिप Yes. बनाता है जिसमें लिखा रहता है ये बंदी इतना दिन प्रेजेंट थी और ये 1 हफ्ता नहीं आई, इसका सैलरी काटना है, सब बोल के उसमें लिखेगा, और इसका टैक्स इतना कटेगा और PF पे इतना कटेगा, सब लिख के स्लिप बनाएगा. और वो स्लिप के ऊपर कोई साइन करना चाहिए ना, ऑथराइज्ड पर्सन, तभी मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा. तो मैं एज यू सेड मैनेजमेंट के साथ पास जाके साइन सब करवाए. So this system, if it is not there, what will happen? सिस्टम नहीं रहता तो क्या हो सकता है? समझो देयर इज नो बायोमेट्रिक, अटेंडेंस सिस्टम ही नहीं है तो क्या होगा? तो मैम कोई मतलब ऐसा होता है कि वो काम पे नहीं आ रहा और फिर भी उसको पूरा हाँ सैलरी है ना, मिलेगा. उसको पूरा सैलरी मिलेगा. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, if the system is wrong, if the system is not proper, everything will go wrong, है ना. एरर फ्रॉड होने का चांसेस है, अभी देखो उधर ही आए हम लोग, है ना, एरर एंड फ्रॉड होने का चांसेस है. सो इन एवरी कंपनी व्हाट इज इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. दिस सिस्टम, ये मैंने सिर्फ सैलरी के बारे में बोला, वैसे ही बोलो आपका एडमिशन का एक सिस्टम है कॉलेज में. ऐसे है कि कोई भी जाएगा प्रिंसिपल सर के टेबल पे आगे, चल मुझे एडमिशन दे अभी, ऐसे बोल सकते हैं? और एडमिशन हो गया, ऐसा है नहीं ना. देयर इज अ सिस्टम. आपसे फॉर्म भरवाते हैं, है ना, उसके बाद फॉर्म चेक करके फीस का पेमेंट होता है, उसके बाद आपका क्लास में मास्टर में एंट्री होता है, देन अटेंडेंस चालू होता है, अटेंडेंस का भी एक सिस्टम रहता है. सो ऑल दिस सिस्टम्स टुगेदर, कॉलेज का ये सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. करेक्ट है? Yes, ऐसे ma'am. सारे कंपनी में भी सिस्टम रहेगा. अभी हम कॉलेज छोड़ देंगे, कंपनी में आ जाओ. सेल्स का एक सिस्टम रहता है कंपनी में, ऐसा है क्या? Yes. कभी भी कोई आके पूछा, गोडाउन से उठा के माल ले दिया? No. नहीं ना. No. देयर इज अ सिस्टम. ऑर्डर प्लेस Yes. करेंगे, उसको कोई चेक करेगा, वो ऑर्डर को आगे बढ़ाएंगे, ऑर्डर को बाद में गुड्स डिस्पैच होगा, चलन बनाते हैं, अकाउंटेंट बिल बनाता है. देयर इज अ सिस्टम. These systems together we call it as internal control system. Hope it is clear everyone. Yes, Internal ma'am. control Yes, ma'am. system क्या होता है? ma'am. ओके, अभी ये limitations में क्यों आया? क्योंकि listen carefully, if this internal control system itself is weak, if internal control system is weak, okay, system ही बरोबर नहीं है, can you blame the auditor there? No. नो. No. नो. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बनाने का, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने का काम किसका है? Management. वेरी गुड, मैनेजमेंट का. और समझो ये सिस्टम रॉन्ग है तो ऑडिटर को भी प्रॉब्लम हो सकता है ना. Right. सिस्टम इफ इट इज वीक, ऑडिटर जितना भी चेक करे, एरर फ्रॉड आइडेंटिफाई करने का चांसेस कम है.